I'm Swati. Welcome back to my channel. We've previously spoken about women's mental health and panic attacks, and now we are going to talk about insomnia and sleep struggles with a board certified psychiatrist, Dr. Anjalika Atre. So, doctor, tell me first that why do we get the loudest thoughts at the time we are trying to sleep? So, like I said previously also, we are not able to process a lot of things that happen throughout the day because we are so busy, so occupied, somebody has texted us, so we need to, constantly have that headspace occupied to texting him back, or, some boss has called you and you have to be, meeting your deadlines and you have to meet your targets and, so many people, so many things to do throughout the day. Headspace nahi milta hai. Yeah. So, you're constantly running, right? So, you don't have a time where you actually think and stop and introspect and everything. So night is the time, typically when you're done with your day, and that's when all of the things come to you, all of them all at once, because you've not processed everything throughout the day. So बहुत सारी unprocessed जो things होते हैं, thoughts होते हैं, that's when they come to your headspace. जो रात को आते हैं. Yeah, जो रात को आते हैं. Yeah, that's why the strangest of the thoughts would come to you when you're actually about to transition to sleep. Also, tell me, why are some people so tired and when they want to sleep, they are not able to sleep? Body tired है but नींद नहीं आ रही है. Insomnia is a big time problem. What happens is that देखिए हमें जब सोना होता है, राइट, सो आवर बॉडी एंड माइंड शुड गो टू स्लीप एट द सेम टाइम. सो ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी टायर्ड है लेकिन आपके दिमाग में कॉन्स्टेंट मेंटल चैटर चल रहा है, एक इंटरनल डायलॉग चल रहा है. So, your mind should also be relaxed to be able to transition smoothly into sleep. But अगर आप stressed out हो, अगर आपको anxiety है, या फिर आप किसी वजह से परेशान हो, या आपको depression है, या फिर आपको कुछ hormonal imbalances है, या फिर आपने कोई substances consume किया है जिसकी वजह से आप awake रह रहे हैं, so वो सारी चीज़ें, आपके जो background noise है वो constantly चालू ही है, right? That's constantly on. तो अगर आप दिमाग को switch off नहीं करेंगे तो obviously आपको नींद नहीं आएगा. So that is how it happens. But then ये तो रोज का है, because we're dealing with so many things. Everybody is, I think. तो like, how do you do this? How do we turn off, or how do we switch off these thoughts? I think that's a very valid question. I wish we had a button, right? A lot of clients tell us कि डॉक्टर कोई बटन नहीं है हमारे पास जो हम प्रेस कर दें और नींद आ जाए. सो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक फिनोमिनन होता है कंपार्टमेंटलाइजेशन. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाटएवर हैज हैपेंड थ्रू आउट द डे, राइट? अगर काम पे कोई स्ट्रेस है, या फिर आपकी किसी भी डोमेन ऑफ लाइफ में, रिलेशनशिप में कोई स्ट्रेस है, या फाइनेंशियल स्ट्रेस है, तो आप उस स्ट्रेस को वहीं पे उस टाइम पे कंटेन कर दीजिए. यू सॉल्व दैट प्रॉब्लम देयर एंड देन रियल टाइम, एंड उसको आप घर पे लेके मत आइए. अगर आपके काम की वजह से आपको कोई स्ट्रेस हो गया और आप घर पे आ गए और काम की you're thinking about that work which is pending, या you need to maybe switch jobs, और उसका आपको स्ट्रेस है, तो आप कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, तो यहाँ का स्ट्रेस इधर दूसरी डोमेन ऑफ योर लाइफ में ओवरलैप कर जाएगा. इट विल ट्रिकल डाउन इनटू योर पर्सनल लाइफ, तो आप उस दिमाग को स्विच ऑफ कर ही नहीं पाएंगे. सो वी नीड टू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि हम चीज़ों को सेग्रीगेट कर पाएँ. सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लेट्स से कुछ इमीडिएट प्रॉब्लम है which has come up शाम के टाइम, या कुछ समथिंग हैज हैपेंड जस्ट इमीडिएटली बिफोर द स्लीप टाइम, तो उसमें हम कैसे उसको कंपार्टमेंटलाइज करेंगे, या उसको कैसे हम अपना थॉट प्रोसेस करेंगे? देखिए, कुछ चीज़ें जैसे आपने बोला ना कि दिस नीड्स इमीडिएट हेल्प, नाउ दैट इज योर परसेप्शन अबाउट इट. आपको ऐसा लगता है शायद, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँ कि ये हाथ कौन से कलर का है, राइट? आप मुझे बोलोगे कि ये स्किन कलर का है, राइट? अगर मैं आपको एक ग्लासेस पहना दूँ और मैं आपको ग्लासेस आपके ट्रांसपेरेंट है और मैं आपको देखते बोलूँ, तो आप क्या बोलेंगे? हाथ कौन से कलर का है? सेम कलर का है. अगर मैं अभी आपके ग्लासेस को पिंक कलर कर दूँ, तो फिर आपको ये हाथ कौन से कलर का दिखेगा? पिंक दिखेगा. बट डज दैट मेक माई हैंड पिंक? इट इज स्टिल द सेम कलर, इट्स द वे यू आर लुकिंग एट इट, राइट? सो आई अंडरस्टैंड कुछ चीज़ें बहुत इसेंशियल होती हैं, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, या फिर कोई हेल्थ इमरजेंसी है, या फिर कुछ एक्चुअली चीज़ें हो सकती हैं विच नीड्स योर इमीडिएट अटेंशन. तो उस चीज़ों पे डेफिनेटली वी नीड टू टेक द टाइम फ्रॉम वट एवर वी आर डूइंग, एंड या आई कैन अंडरस्टैंड कि उस चीज़ को इमीडिएटली एड्रेस करना है. बट सम थिंग्स वी कैन एक्चुअली डील विद लेटर, बट जस्ट बिकॉज वी आर सो overwhelmed or worried about it, all of those, what if this happens, what if that happens, right? उसकी वजह से आपको लग रहा है, इट्स द परसेप्शन ऑफ दैट थिंग. तो हो सकता है शायद वो उतनी ज़रूरी नहीं है, इट्स जस्ट दैट आपको लग रही है वो ज़रूरी है. बेसिकली उसको सेग्रीगेट करना ज़रूरी है. ओके, दिस कैन वेट, दिस इज एसेंशियल, दिस इज नॉन एसेंशियल. मतलब खुद को बताना, खुद को बोलना ज़रूरी है कि दिस कैन स्टॉप, आई मीन दिस कैन वेट. हाँ, दिस कैन वेट, ये अभी थॉट प्रोसेस रुक सकता है, लेट्स जस्ट स्लीप, टेक अ डीप ब्रेथ एंड स्लीप. तो वो अपने आप को बताना बहुत, लाइक आई थिंक यहाँ पे मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हम अपने इंटरनली ना दो लोगों से डील कर रहे हैं.
Yes. अब आप उसको बॉडी या माइंड बोलें या बॉडी बोलें, आई डोंट नो हाउ वी वुड से दैट इन प्रोफेशनल टर्म्स, बट मैं एज अ लेमन बोलूँ तो आई हैव सीन दैट इन फिटनेस वेयर ऑल्सो कि बताना पड़ता है खुद को कि नहीं नेक्स्ट 15 दिन मैं जिम जाऊंगी, Yes. जाना है, आई विल नॉट, एंड द बॉडी फॉलोज. Yeah, exactly. आई थिंक दैट you've been talking on the Yes. similar lines. I can relate कि खुद Yes. को बोलना बहुत जरूरी है, खुद को Correct. बताना बहुत जरूरी है. Correct. जैसे सोच के कि हाँ कल से जिम जाएंगे, तो ऐसे नहीं होता है. आप नहीं जाओगे कल भी अगर आप बिजी हो गए तो. And you need to attach a purpose to what you are doing, right? मुझे जिम जाना है just because मुझे किसी ने बोल दिया, no, that's not really gonna be sustainable for you. आप 4 दिन या 1 महीना चले जाओगे और उसके बाद क्या, your motivation will fall off, right? आपको एक purpose attach करना है उस चीज़ से कि मैं जो भी काम करना चाहता हूँ, so उसके लिए मैं क्या, you know, why I want to do this, right? So एक long term और एक short term goal आपके दिमाग में clear होना चाहिए कि this is why I want to do this. तो आप थोड़ा सा driven रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे वो चीज़ करने के लिए. True, absolutely makes sense. Also, doctor, tell me, are sleeping pills bad or do they have a safe space in the mental health treatment? देखिए, स्लीपिंग पिल्स का तो मुझे लगता है 100 सालों से एक कंट्रोवर्सी चलती आ रही है. सो एनीवे, इनएडवर्टेंटली हम हर किसी को स्लीपिंग पिल्स दे देते हैं या फिर दी जाती हैं, ऐसा नहीं होता है. अगर आप सिर्फ एक प्राइमरी इंसोम्निया या स्लीप डिस्टर्बेंस से आपको वो एक प्रॉब्लम है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई कि अंडरलाइंग रीजंस क्या हो सकते हैं. इट कुड बी एज सिंपल एज दैट आप शायद 15 सिगरेट स्मोक करते हैं और निकोटिन की वजह से आपका दिमाग अलर्ट हो जाता है. आप बहुत चाय पीते हैं, आप बहुत कैफीन इंटेक करते हैं, सोने से पहले भी आप कैफीन लेते हैं, तो आपका दिमाग एक्टिवेटेड है, तो आपको नींद नहीं आएगी. अभी स्लीपिंग पिल देने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी. वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू रिड्यूस योर caffeine intake, we need to cut down your nicotine intake. So बहुत सारे lifestyle modifications and behavioral interventions की वजह से आपके जो insomnia related issues है, we can tackle those issues. So, you don't always need sedative or hypnotic for that. Layers में काम करना पड़ता है basically. Yes. That's what you mean to say. Is it true women in perimenopause experience more disturbed sleep patterns? या सो जो स्लीप डिस्टर्बेंस पैटर्न्स होते हैं ना, तो उसको हम एक्चुअली डिवाइड कर देते हैं. कुछ लोग बोलते हैं कि हमको देर से नींद आ जाता है. सो मुझे डॉक्टर आई गो टू बेड एट 12 बट मैं सुबह के 4 बजे तक जगी रहती हूँ, थिंग्स लाइक दैट. तो उसको हम बोलते हैं थोड़ा सा ऑनसेट में डिफिकल्टी है. कुछ लोग बोलते हैं कि मैं बेड पे जाती हूँ, मुझे नींद तो आ जाती है डॉक्टर, बट खुल जाती है एंड मल्टीपल टाइम्स फ्रैगमेंट्स में खुलती रहती है, एंड आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू फॉल asleep later. मुझको 2-3 घंटे तक फिर वापस नींद नहीं आती है, एंड देन आई कीप ओवरथिंकिंग एंड ऑल. सो दीज आर 2 मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्लीप विच women in perimenopausal age group usually experience. एक अनदर वैरायटी भी है जो women बहुत कॉमनली फेस करते हैं, दैट इज उनको रात में नींद नहीं आती है लेकिन उनको दिन में बहुत ज़्यादा नींद आती है, एंड दे फील टायर्ड एंड लेथार्जिक थ्रू आउट द डे, या फिर बहुत ज़्यादा स्लीप आना एंड डल फील करना. वो भी एक प्रॉब्लम है स्लीप से रिलेटेड जो लोगों को काफ़ी टाइम देखा गया है कि एक्सपीरियंस करते हैं. एंड हाउ डू वी रेक्टिफाई दिस? इसका सोल्यूशन क्या है? या सो थोड़े से बिहेवियरल इंटरवेंशंस लाइक यू गो टू बेड एट द सेम टाइम, यू ट्राई टू गेट अप एट द सेम टाइम, राइट, एंड कॉन्स्टेंटली अगर फ़ोन वगैरह यूज़ मत करिए नाइट के टाइम पे. एंड अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो वी टेल पीपल कि आप हार्मोनल रिप्लेसमेंट करा लीजिए, एंड देयर आर मेडिकेशंस एंड ट्रीटमेंट अवेलेबल इन आवर मॉडर्न साइकियाट्री व्हिच कैन डेफिनेटली हेल्प रिजॉल्व these kind of issues. What's one nighttime ritual that you recommend to people struggling with sleep that actually works? So actually अगर आपने देखा होगा, आप हर जगह इंटरनेट पे there are videos about skin care ritual, nighttime skin care ritual, you use you toner, moisturizer, serum and all of those things. So I always tell people you should have a 15 minutes of pre-sleep ritual also. So I tell people आप 15 minute लीजिए, just see and just think about whatever has happened through the day. Is there, you can also plan about your next day, about your next week, or is there something that needs attention, or if there is somebody you need to talk to, or you can do little bit of deep breathing exercises, थोड़ा सा box breathing कर सकते हैं. You can note down things, you can journal them, you can vent them all out on a piece of paper. It really helps to calm your mind. So वो definitely एक चीज़ है जो काफ़ी लोगों को help करती है. अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज़ होता है स्लीप हाइजीन, जो हम अपने क्लाइंट्स को भी सिखाते हैं, हमेशा रेकमेंड करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे आप नाइट टाइम में सोने से पहले बहुत ज़्यादा पानी मत पीजिए, बिकॉज क्या होगा अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पी लेंगे तो ऑब्वियसली यू वांट टू पी, यू वांट टू यूरिनेट, सो यू विल कीप वेकिंग अप इन द मिडल ऑफ द नाइट. दैट एंड वी टेल पीपल टू अवॉइड टी, कॉफ़ी और ऑल काइंड्स ऑफ कैफिनेटेड बेवरेजेस आफ्टर 2 PM. वी टेल पीपल कि आप मत लीजिए. सिमिलरली सेम गोज फॉर वेपिंग और निकोटिन और सिगरेट्स एंड थिंग्स लाइक दैट, बिकॉज लाइक आई सेड ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल मेक योर माइंड मोर अलर्ट एंड इवेंचुअली आपको सोने में डिफिकल्टी होगा. एंड वन अदर
other thing that I always tell all my clients is that our brain now, it cannot differentiate between an artificial light and a natural light. तो हमारा ब्रेन ऐसे डिजाइन हो गया है कि अगर हमको दिन है तो हमको जगना है, काम करना है, रात हो गई है तो शट डाउन होकर सो जाना है, राइट. बट अभी क्या होता है कि वी आर मोस्टली अवेक टिल लेट इन द नाइट. हम लोग फोन यूज कर रहे हैं, लैपटॉप्स यूज कर रहे हैं, आईपैड्स यूज कर रहे हैं. सो क्या होता है जब लाइट सोर्स हमारी आईज में जाता है तो वहाँ से इट ट्रिक्स आवर ब्रेन इनटू बिलीविंग कि दिन है, एक्टिव हो जाओ. या दिन है, एक्टिव हो जाओ. सो वो जो मेलेटोनिन प्रोडक्शन होना चाहिए नेचुरली, जो आपको इट्स अ स्लीप प्रमोटिंग हार्मोन, तो वो जो मेलेटोनिन है वो उतना इफेक्टिवली प्रोड्यूस नहीं हो पाता है. सो आई टेल ऑल माई क्लाइंट्स कि आप एक डिजिटल डिटॉक्स लो पहले. आप सोने से 30-45 मिनट्स पहले अपने रूम की लाइट्स वगैरह डिम कर दीजिए, या फिर अगर आप स्क्रीन्स भी यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा वो लाइट एंड डिम ऑन द स्क्रीन्स. एंड 30 to 40 मिनट्स पहले इट इज एक्चुअली बेस्ट कि आप सारे स्क्रीन्स अवॉइड ही कर दीजिए, एंड दैट ऑलवेज वर्क्स द बेस्ट. और अगर आप बाई चांस रात में उठ जाते हैं तो वी टेल पीपल कि आप बार बार टाइम मत देखो, राइट. अगर आप गए तो आप यू कैन गो टू द वॉशरूम, यू कैन मे बी टेक अ राउंड इन योर होम एंड देन फॉल बैक टू स्लीप अगेन. बट कॉन्स्टेंटली अगर आप टाइम देखेंगे तो और एंग्जाइटी हो जाती है, और एंग्जाइटी यस मैं कल कैसे फंक्शन करूंगी एंड थिंग्स लाइक दैट. सो वो कुछ बेसिक चीज़ें हैं स्लीप हाइजीन की जो फॉलो करने से लोगों का काफ़ी स्लीप साइकिल बेटर हो जाता है. एंड देर आर थिंग्स लाइक CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी फॉर इंसोम्निया. सो अगर बहुत प्रॉब्लम होता है, सो दैट इज समथिंग वी टेल पीपल टू डू. Okay, and would you like to add something for senior citizens also जो इतना probably phones नहीं use करते हैं, इतना screen time भी उनका नहीं होता है, but वो शायद age related insomnia हो जाता है. How would you address that? सो अगेन लाइक आई सेड, अगर कोई भी हार्मोनल या केमिकल इम्बैलेंस की वजह से कोई स्लीप डिस्टर्बेंस हो गया है या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से हम मैनेज कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ दोज थिंग्स कैन ऑलवेज बी टेकन केयर ऑफ. लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एल्डरली पॉपुलेशन है उनके जो केयर गिवर्स है ना, उनको ऐसा लगता है कि ये तो ओल्ड है, एल्डरली है, इट्स नॉर्मल, उनको नींद नहीं आ रही है तो इट्स ओके, इट्स समथिंग दैट डजंट नीड आवर अटेंशन एंड थिंग्स लाइक दैट. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट नॉर्मल कि वो लोग सो नहीं रहे हैं रात में, राइट. फिर क्या होता है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम अगर कॉन्स्टेंटली एक इंसान सोएगा नहीं, इवेंचुअली दे विल स्टार्ट हैविंग एंग्जाइटी, दे विल स्टार्ट बिकमिंग क्रैंकी एंड इरिटेबल इन द डे एंड एवरीथिंग. बट अगेन या दे से दैट इट्स एज रिलेटेड, ओल्ड है, वी नीड टू एड्रेस इफ देयर आर इश्यूज. Another thing, doctor, like I have 2 teenagers, and जब से puberty hit हुई है, teenage hit हुई है, they sleep like they wake up at 5 PM at times, रात के सोए हुए, not even कि सुबह सोए हैं. So is that okay? Is that not okay? How do you address this? सी डेफिनेटली एक हेल्दी स्लीप वेक स्केड्यूल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिगार्डलेस ऑफ योर एज. बी आई मीन इफ यू आर अ टीनेजर, इफ यू आर एन एडोलेसेंट, इफ यू आर एन एल्डरली, व्हाटएवर इट इज, एक एक फिक्स टाइम होना चाहिए एट विच यू गो टू बेड एंड अ फिक्स टाइम एट विच यू गेट अप, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्योंकि फिर ग्रेजुअली हमारा स्लीप साइकिल शिफ्ट होने लगता है. फिर वो 12 से रात का 1 बजे हो जाता है, फिर इवेंचुअली 2 एंड इट गोज टिल 5 AM and 6 AM एंड इट इम्पैक्ट्स योर डे. बिकॉज फिर आप अगर आपको ऑफिस जाना है, अगर आपको काम करना है, आपको स्कूल या कॉलेज जाना है, तो यू विल हैव टू बी अवेक इन द डे ऑल्सो, एंड देन योर ब्रेन इज कॉन्स्टेंटली अवेक एंड इट गोज इन अ स्टेट ऑफ फटीग. तो देर इज समथिंग कॉल्ड एज डिसीजन फटीग. तो क्या हो जाता है ओवर लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम, अगर आप रात में भी नहीं सो रहे हैं, अगर आप दिन में भी जगे हैं, तो वो सब चीज़ों से आपकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है या आपकी जो कॉग्निटिव कैपेसिटी है वो फिर इम्पैक्ट होने लगती है. एंड आप जो मेजर लाइफ डिसीजंस या फिर आप डे टू डे डिसीजंस जो आप लेते हैं वो भी आप बहुत शार्पली नहीं ले पाते हैं. सो इट इम्पैक्ट्स योर क्वालिटी ऑफ लाइफ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बोथ. जैसे पीछे एक रील वायरल हुई थी, मुझे अभी याद आया कि बच्चों को सोने दो, उसकी टैगलाइन थी. एंड देन देयर वाज अ लॉट ऑफ कमेंटिंग एंड ओपिनियंस हैपनिंग अराउंड इट कि नहीं उठाओ बच्चों को, अगर वो 1 बजे तक सोने दो. वही पूरा एक मतलब उसकी टैगलाइन ही बन गई थी कि बच्चों को सोने दो. सो अगेन वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग टू इट? सो आप बच्चों को सोने दें क्योंकि आपको लगता है कि अभी तो वो बच्चे हैं, लेकिन जब वो 5 या 6 साल के बाद 21, 23, 24 ईयर्स के हो जाएंगे, तब फिर पेरेंट्स परेशान होकर हमारे पास लेके आते हैं कि बच्चा हमारा सोता ही रहता है. बट आई ऑलवेज टेल देम कि बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है, ये आप ही की प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने बचपन से उसको ऐसे इस चीज़ के लिए मना नहीं किया, अलाउ किया, एनेबल किया, राइट. सो अभी सडनली यू आर सीइंग योर किड एज अ प्रॉब्लम, while the problem is that over years you have conditioned the kid to, let's say, to keep sleeping till whatever time. So it has to be a much more holistic approach where we counsel the parents also and we counsel the child also. सिर्फ child को ऐसा blame करके that's not how the problem will be solved. So I started telling my kids कि extended sleep on your weekends mean 11 AM और noon तक, but does not mean कि आप 5 बजे तक सोएंगे. So yeah, I try to condition them, but
Conditioning takes time. Conditioning takes time. Yeah. Yeah. So you'll have to have that patience. Yeah. So I hope you found that helpful, and if you want to stay fit, sleep better, do subscribe to my channel.